अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 4 क्या है? कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। इसका मैं ऑलरेडी पार्ट 18 रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और आज मैं इसका पार्ट 19 रिकॉर्ड करूँगी। मैंने पार्ट 18 को जो है 109 के ऊपर फिनिश किया था, पॉइंट नंबर 109 पर, और मैं आज पार्ट 19 को 110 से शुरू करती हूँ। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट नंबर 110 ये है कि पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल PPTP is an obsolete encapsulation protocol developed from the dial-up point-to-point protocol ना, अभी obsolete हो गया है ये। The initial tunnel negotiation process used by PPTP is not encrypted। ठीक है, ये encrypted नहीं होता है। Thus, the session establishment packets that include the IP address of the sender and receiver and can include username and hash password could be intercepted by a third party। ठीक है, फिर आता है पॉइंट नंबर 111, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल L2TP was developed by combining features of PPTP and Cisco's layer 2 forwarding VPN protocol। ये कॉम्बिनेशन है इसका, ये जो हमने अभी पढ़ा था ना, PPTP और सिस्को की लेयर 2 का ना, ठीक है ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 112, SSH सिक्योर शेल network protocols that allow one computer to securely connect it to another computer over an unsecured network like the internet. Without encryption, data travels over the web and plain text, which makes it easy for someone to intercept user's name or password data and then use it। however, SSH जो है सिक्योर शेल जो है encrypts your data through a tunnel so you can securely transmit files or safety issue remote commands and much more। SSH is commonly implemented using the client server model। One computer is called the SSH in a secure shell client and another machine acts as a SSH, which is a secure shell server, can then be set up using a pair of keys, a public key that is stored on the SSH server and the private key। ये जो नेटवर्क प्रोटोकॉल जो होता है ना, ये सिक्योरली एक कंप्यूटर से लेकर दूसरे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है इंटरनेट के थ्रू नेचुरली, लेकिन ये प्लेन टेक्स्ट के अंदर होता है ना। तो प्लेन टेक्स्ट के अंदर रिस्क तो अपनी जगह मौजूद ही होते हैं ना। तो ये जो SSH है ना, सिक्योर शेल जो होता है वो है ना, मैसेज को इनक्रप्ट करता है, फाइल्स को इनक्रप्ट करता है, ठीक है ना। तो इसके लिए पब्लिक की यूज़ की जाती है ताकि डिक्रिप्ट किया जाए इसको, फाइल्स को और मैसेजेस को ना। फिर आता है 113, IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल is a collection of protocols designed by the Internet Engineering Task Force IETF to provide security for a packet at the network level ना। सिक्योरिटी किसके थ्रू जो पैकेट्स बनते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं ना, तो नेटवर्क लेवल के थ्रू इसमें जो है ट्रांसफ़र होता है।
द नेटवर्क लेयर जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, in the internet is often referred to as the internet protocol और IP layer ना, so IP layer भी कहा जा सकता है. IPsec helps, यानी IP की जो security है, helps create authenticated and confidential packets for the IP layer. IPsec is designed to provide security at the network layer. Application of IPsec क्या है? It's provide the capability to secure communication across LAN, local area network, ठीक है ना, across public and private WAN, wide area network, and across the internet ना. local area network जो है उस पर भी कम्युनिकेशन, और वाइड एरिया यानी फैला हुआ नेटवर्क भी, और इंटरनेट भी. एग्जाम्पल्स आर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सिक्योरिटी लाइक रिमोट लॉग इन, ईमेल्स, फाइल ट्रांसफ़र एक्सेट्रा ना. ये आईपी सिक्योरिटी ये है ना कि वो सिक्योरिटी हर चीज़ CISSP में सिक्योरिटी से ही ताल्लुक़ रखती है. और ये नए नए मॉडल्स, प्रोग्राम्स, लेयर्स बनते हैं. मोर एंड मोर जो है ऑनलाइन सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी और जितनी भी कंप्यूटर की सिक्योरिटीज़ जो है ना, ठीक है ना. बेनिफिट ऑफ IPsec इज इम्प्लीमेंटेड इन अ फायरवॉल which provides strong security that can be applied to all traffic crossing the parameters. फिर आता है पॉइंट नंबर 114, स्विचिंग एंड वर्चुअल LAN, लोकल एरिया नेटवर्क्स ना. स्विचेस आर द मोस्ट कॉमन मॉडर्न network management device. A switch operates primarily at layer 2 but may be equipped to operate at layer 3 or higher for specialty purposes. ये layers के थ्रू जाते हैं. हम ये TCP के लेयर और हम इसमें पढ़ चुके हैं ना. A virtual local area network which is VLAN is a hardware imposed network segmentation created by switches. हम switches को भी पढ़ चुके हैं ना. VLANs are used for traffic management because they are form and network segmentation. VLANs can be used to isolate traffic between network segments. वो segments में जाती है ना ताकि सिक्योरली चली जाए ना, आइसोलेट कर दी जाती है, सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं. फिर इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 115, मैक फ्लडिंग अटैक is an intentional abuse of the switch learning function to cause it to get stuck flooding ना. ट्रैफिक को रोक देता है, स्टक कर देता है. मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस फ्लडिंग इज distinct from ARP, address resolution protocol, poisoning, and other type of MITM, man in the middle, on path attack is that the attacker doesn't get into the path of the communication between client and server. Instead, the attacker gets a copy of the communication. वो उसके बिटवीन नहीं आता है ना, क्लाइंट और सर्वर के बीच बिटवीन नहीं आता है, लेकिन वो क्या करता है कि कॉपी कर लेता है सारी कम्युनिकेशन को ना, जो भी भेजी जा रही है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको कॉपी कर लेता है. इसे कहते हैं मैक फ्लडिंग अटैक ना. अच्छा, मैक क्लाउनिंग जो है वो पॉइंट नंबर है 116. No two devices can have the same MAC address in the same local Ethernet broadcast domain. हमने फ़र्क देखा था इंटरनेट, ईथरनेट वगैरह का, हम पढ़ चुके हैं. Otherwise an address conflict occur. MAC spoofing is the changing of the default MAC address to same other value. MAC cloning
उसकी वैल्यू को बदल दिया जाता है। क्लॉनिंग हम समझते हैं कि रेप्लिका बनाना, डुप्लीकेट बनाना ना। मैक क्लॉनिंग इज यूज टू impersonate another system, often a valid or authorized network device, to bypass port security or MAC filtering limitations. चलें, अब आता है पॉइंट नंबर 117, network address translation, NAT. For the first 2 decades of the internet, computer on a private network connected to the internet worked this way ना। यानी समझो 20 साल के करीब, जब पहले 20 साल जो इंटरनेट के थे, उसका ये है कि कंप्यूटर जो प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड होता था इंटरनेट के साथ ना, get a block of unique public IP addresses and assign them to each computer and the LAN local area network side of the default gateway. They assign IP address of ISPs जो कि है ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर राउटर्स हैं, on the one hand of the default gateway, then tell each computer on the private network the default gateway IP address. All IP addresses here in this setup are public IP addresses. This classic setup has at least two big problems ना। बस सीधी सिंपल सी बात है, हालांकि इतना लंबा लिखा हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है, पर बात सीधी ये है कि जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, हमें मालूम है सारे प्राइवेट कंप्यूटर्स ना, तो इसकी जो वॉनरेबिलिटीज़, इसकी कमज़ोरी क्या है, कमज़ोरियाँ क्या हैं, वो ये हैं कि सिक्योरिटी वॉनरेबिलिटी, सिंस आईपी एड्रेस आर पब्लिक, everyone can access is a so called private network, क्योंकि वंस वो इंटरनेट पर आ जाता है तो सबके सामने आ जाता है ना, तो ये इसकी कमज़ोरी है। और फिर आता है आईपी एड्रेस exertions as the internet grows larger and faster than anyone ever could imagine. IP addressing and a network address translation और नेट कम टू रेस्क्यू। हम जानते हैं कि इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी और इतना फैल गया कि इंसान बना तो लेता है चीज़ें, लेकिन उसे बहुत देर के बाद ये अंदाज़ा होता है कि इस चीज़ ने कितना फैलना है ना। तो जितनी भी चीज़ फैलेगी ना, उसमें कमज़ोरियाँ तो आएंगी, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, ह्यूमन के तो एरर्स होते ही होते हैं। अमेरिका में भी मैं जिस स्टेट में भी जाती हूँ, मुझे वहाँ हर जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन रोड का नज़र आता है, क्योंकि उन्हें पहले अंदाज़ा नहीं था कि पब्लिक इतनी बढ़ जाएगी और इतनी गाड़ियाँ रोड के ऊपर आ जाएंगी। तो अब वो उनको वाइट, हर सूरत वाइट, रोडों को वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक जैम कम से कम होना। तो यही हाल इसका हुआ है इंटरनेट का ना। Proud IP addresses are scary to anyone, but not a routable net is a process of technology where a router or similar network device translate one IP address into another IP address भी हो सकता है। उसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि NAT improves security because internal host IP address are hidden, ठीक है। और दूसरा ये है कि NAT together with IPv4 private addressing scheme conserves IPv4 address space and thus extend the lifespan, ठीक है ना। फिर ये NAT कितने हैं? देर आर 4 टाइप ऑफ NAT ना। स्टैटिक NAT है, SNAT, स्टैटिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अच्छा,
मैं पहले आपको ये तो बताना भूल ही गई थी कि NAT किसका एब्रिविएशन है। ये है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। फिर दूसरा है डायनेमिक NAT ना। फिर तीसरा है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। और फिर चौथा है पोर्ट फॉरवर्डिंग। इसकी डिटेल में मैं जा सकती थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी और CISSP इतनी डिटेल मांगता नहीं है। CISSP के ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिनेरियो बेस होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिनिश करती हूँ मेरे अंदाजे के मुताबिक। अब ये डोमेन 4 का सेकंड टू लास्ट होगा पार्ट, और ये पार्ट 19 यहाँ पर फिनिश होता है पॉइंट नंबर 117 पर, और पार्ट 20 जो है ना मैं स्टार्ट करूँगी पॉइंट नंबर 118 पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।